میر سائیں روز روز آدھی رات کو گھر سے نکلنے میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اندھیرے اور سنسان گلیوں سے گزرتے ہوئے خوف سے میری جان نکلتی ہے۔ زرتاش نے ڈرتے ڈرتے اپنی مشکل بیان کی۔ سردی کی شدت سے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ٹھٹھرا رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی شال اسے سخت سردی سے محفوظ رکھنے میں ناکام تھی۔ اچھا، میرے علاوہ بھی تمہیں کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اسٹرینج، وہ آئی برو اچکا کر قدر سنجیدگی سے بولا، مگر اس کا موڈ فل شرارت بھرا تھا۔ ڈارک کلر شلوار سوٹ میں رات کے اس پہر بھی وہ نکھرا نکھرا سا پرنس چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس کی نفاست سے تراشی ہوئی دلکش مونچھیں دل تلے خوبصورت ہونٹوں پر مستقل شریر سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ دلبر سائیں، یوں کہو نا، مجھ سے زیادہ شادی کی جلدی تمہیں ہی ہو رہی ہے۔ ہم دونوں کی یہ ادھوری سی ملاقات تمہیں بھی کھلنے لگی ہے۔ تم بھی ہر پل ہر وقت ہر جگہ سوتے جاگتے میرا ساتھ چاہتی ہو۔ وہ بڑی ادا سے فلمی انداز میں بول رہا تھا۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میر نے اس کو ٹھٹھرتا کانپتا دیکھا تو اپنے گلے میں لپٹی بھاری مردانہ شال اس کی گرد لپٹاتے ہوئے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر پوچھا۔ میر نے اس کی ہی بات پہ اس کو پھنسا کر ایک زوردار کہکمہ لگایا، پھر بڑی میانی خیالی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے نوٹ کرنے لگا۔ سائیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس میں یہ چاہتی ہوں آپ روز روز ملنے کی ضد نہ کیا کریں، میری جان مشکل میں آ جاتی ہے۔ زرتاش نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ میر کی بات پر وہ پہلے بھی بری طرح جھپ گئی تھی، پھر سے ناگوار تو گزری، مگر اس نے فوراً ہی چہرے کے تاثرات بدل کے میر کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا میری جان، پھر تم ہی بتا دو کتنے دن بعد ملنے کی ضد کیا کروں؟ وہ مسکراہٹ دبائے معصوم سی شکل بنائے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل بھی سیریس موڈ میں نہیں تھا۔ اوف! زرتاش نے بے ساختہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، جانے سجاول اپنی قسمت کو کوس رہی ہے مجھے، جس نے تم سے دل لگا کر تمہیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میر سجاول نے ڈیش بورڈ پر رکھے سرخ گلاب کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا دیا اور زرتاش کے بالوں میں سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا، سائیں اللہ نہ کرے جو میں کبھی آپ کو کوسوں۔ زرتاش نے معصومیت سے ہاتھ کانوں کو لگائے۔ اتنا چاہتی ہو مجھے؟ میر کا کہکمہ بے ساختہ تھا۔ زرتاش کے گالوں پہ یکدم سرخی بکھر گئی، ہونٹوں پہ شرمندگی مسکراہٹ نے جھپ دکھلائی، جسے چھپانے کے لیے وہ رخ موڑ کر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ میر نے بڑی دلچسپی سے یہ روپ دیکھا، پھر اس کا رخ اپنی جانب گھما کر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زری، اگر میں مر جاؤں تو تم مجھے بھول جاؤ گی نا، بلکہ تم تو شکر مناؤ گی۔ اچھا ہوا مر گیا، میری جان چھوٹ گئی۔ زرتاش نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتا ہوں میں ایک پل میں بھول جاؤ گی مجھے اور شادی کر لو گی کسی اور سے، میر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میر سائیں، ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو ویسے بھی معظم سائیں اور آپ کی دشمنی اور آئے دن کے جھگڑوں سے خوف زدہ رہتی ہوں، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ زرتاش کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ چپ، بالکل چپ، دوبارہ کبھی میرے سامنے اپنی زبان سے معظم کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ میر نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑ لیا۔ زرتاش سائیں کو خوفزدہ سی دیکھنے لگی۔ زرتاش کو اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے منہ سے نکلنے والی کون سی بات میر سجاول جیسے سرفرے کو مشتعل کر دے گی۔ زرتاش، میں اپنے سوا کسی اور کا نام تمہاری زبان پر برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی میرے سب سے بڑے دشمن کا۔ میری برداشت کو اس طرح کبھی مت آزمانا۔ پھر کبھی تم نے اس گالی کا نام لیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا، اور تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، پھر چاہے بدلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میں اس معاملے میں کبھی رعایت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ دہشت ناک ہو گیا تھا۔ زرتاش کی پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر میر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میر سجاول نے ایک نظر زرتاش کے ڈرے سہمے چہرے پہ ڈالی، پھر یکدم موڈ بدل کر اس کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور جھک کر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے گال پہ رکھ دیے۔ زرتاش جو سردی سے برف ہو جا رہی تھی، در حقیقت میر کے سرد لہجے نے اسے اپنی جگہ منجانب کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ میر کی پرحدت باہوں کی گرمی میں پگھلنے لگی اور پھر سکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ میر سجاول گہری سانس بھر کر زرتاش کی خوشبودار زلفوں کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ بلا اس خوشبو کو محسوس کر کے مدہوش ہو رہا تھا۔ زرتاش، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، درخت کے نیچے کیوں بیٹھی ہے؟ پگلی ہوئی ہے کیا؟ زرتاش کی ماں نے دور سے مرغیوں کے پنجرے میں بند کرتی ہوئی زرتاش کو ڈانٹا، نہ جانے کب سے درخت سے ٹیک لگائے میر سجاول کی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اثر سے کب مغرب ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں کی پکار پر ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے اپنے گال پر انگلیاں رکھ کر میر سجاول کے لبوں کے لمس کو محسوس کیا، آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں میں بہنے لگے۔ وہ اب اسے کیا بتائے کہ اس کو بھولنا تو دور کی بات، اس کے بغیر سانس لے نہیں پا رہی تھی۔ اس کی جدائی نے کسی اور کے ساتھ جینا تو کیا اپنی زندگی سے بھی دور کر دیا ہے؟ وہ سانس تو لے رہی ہے مگر جی نہیں رہی۔ اس پر شدت سے اس کے دل نے پھر میر سجاول کی زندگی کے لیے دعا کی تھی۔
वो मगरिब की नमाज़ क़ज़ा नहीं करना चाहती थी, चुपके से अपनी हथेलियों से आँखें रख लीं और वज़ू के लिए बेजान कदमों से नल की तरफ बढ़ गई। रानिया से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर अब तक मखदूम शाह इसे भुला नहीं सका था। मखदूम शाह को मासूम सी गुड़िया जिसे लड़की बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन वो अपने जज़्बों को कोई नाम नहीं देना चाहता था। वो अपने और इस ख़ानदान के बीच में बड़ी दीवार को फ़रामोश नहीं कर सकता था, मगर इस दिन की पार्टी में होने वाली मुलाकात के बाद से वो मुसलसल इसके बारे में सोचे जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था वो खुद भी नहीं जानता था, मगर आज दिल की बेकरारी उरूज पर थी। आखिर मजबूर होकर आज वो रानिया के नंबर पर कॉल कर रहा था, जबकि वो जानता था कि इस वक्त वो बहुत परेशान होगी और मीर सजावट के ज़ख्मी होने की खबर से आगाह था और उसे यही मुनासिब वक्त लगा था रानिया को कॉल करने का। इस बहाने से वो इसे खुद से पहल करने की शर्मिंदगी से भी बच जाता। बैल मुसलसल जारी थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हेलो, चंद लम्हों बाद रानिया की थकी थकी सी आवाज़ मोबाइल पे उभरी। डॉक्टर मखदूम शाह का नंबर देखा, इसकी आवाज़ ज़रा मोहतात थी। हेलो रानिया, कैसी हैं आप? मखदूम शाह ने नरमी से इस्तफ़ार्ज़ किया। मैं ठीक हूँ। रानिया इसकी कॉल पर कुछ हैरान सी थी। मुझे बस अभी आपके कज़न पर होने वाले हमले की खबर मिली है। मैंने मीर सब्दीन से खैरियत मालूम दरियाफ़्त करना चाहिए, लेकिन इनके नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा आपका नंबर ट्राई करूँ। मीर सजावल की कंडीशन कैसी है? मखदूम शाह मुकम्मल अनजान बना पूछ रहा था, जबकि वो जानता था कि इस सब के पीछे कौन है। मुअज़्ज़म शाह, इसका भाई, और वो अपने भाई की हर अदा से आशियाना था। कैंपेन में होने वाली बदनामी और बदमज़गी को वो इतने आराम से नज़रअंदाज करने वालों में से नहीं था। सजावल भाई की कंडीशन क्रिटिकल है, अब तक इन्हें होश नहीं आया। रानी ने अफ़सरदगी से जवाब दिया, मैं हॉस्पिटल आना चाहता, लेकिन जाफ़र शाह और उनकी फैमिली को ये बात नागवार गुज़रेगी, इसलिए वहाँ आने का इरादा तक कर दिया। वो बात को तूल दे दिए जा रहा था। जी, आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं होगा, रानी ने साफ़ गोई से जवाब दिया, क्योंकि फ़ाइज़ा चच्ची वक्फ़ी वफ़ी से शाहपुर वालों को कोस रही थी। ऐसे में मखदूम शाह की आमद हंगामा बर्पा कर देती। रानी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी। आपने मेरी कॉल करना माइंड तो नहीं किया? नहीं, नहीं, रानिया के मुँह से बेसाख्ता निकला। फिर इसने ज़बान दाँतों तले दबा ली। मखदूम शाह की इसकी हालत को तसव्वुर की निगाह से देख रहा था। वो उसके अंदाज़ पर ख़ासा महफ़ूज़ हुआ। इट मीन्स आप मेरी कॉल का इंतज़ार भी करेंगी? जी। रानिया इसकी बातों को एकदम कन्फ्यूज़ हो गई। इसकी समझ में नहीं आता इस बात का जवाब हाँ में दे या ना में। मैं जानता हूँ आप ज़रूर इंतज़ार करेंगी। गुड बाय। मखदूम शाह इसकी कैफ़ियत समझकर खुद ही बोल पड़ा। फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह टिका दी, जिसे जैसे रानी की तस्वीर इसमें जगमगा रही हो, मगर रानी की तस्वीर इसके तसव्वुर में रोशन थी। मुअज़्ज़म शाह ने वहाँ से निकलते ही अपने ज़र्रा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अगले ही घंटे में वो रुशी गुमशुदगी की वजह तक पहुँच चुका था। लोकेशन भी इसे फराहम कर दी गई थी। वो दीवानगी के आलम में गाड़ी को ड्राइव करता, जो हवाओं से बात कर रही थी। शाह के साथ इसके 4 गार्ड्स भी मौजूद थे, जो दूसरी गाड़ी में सवार थे। वो तन्हा ड्राइव कर रहा था, इसके सर पर वहशत सवार थी। शाह का बस चलता तो उड़कर इस जगह पहुँच जाता, जहाँ हम्माद ने उरूज को अगवा करके छुपाया था। जिस शख्स ने उरूज को अगवा किया था, इसके बारे में अब तक शाह अब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका कि इसने किसके हुक्म पे इतनी जुर्रत की है। मीर सब्ज़ी और उसके ख़ानदान पर मुसलसल इस आदमी का नज़रें रखे हुए थे। वो तकरीबन सुबह से हॉस्पिटल में मौजूद था। अगर शाह को इसके इस काम में मुलव्विस होने का ज़रा भी शक होता, तो वो अब तक मीर सब्ज़ी को अपने हाथों से अज़ियतनाक मौत दे चुका होता। शाह की नज़रें बार-बार मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद लोकेशन की टाइमिंग पर बेचैनी से उठतीं। अब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी वो जगह। इसके दिमाग की रगें मज़ीद तन गई। इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। 10 मिनट से भी कम वक़्त में वो लोग इस प्लाट के बाहर मौजूद थे। खादिम मुसल्लम बाकी तीनों गार्ड्स फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकले। शाह के इशारे पे खादिम मुसल्लम पकड़ प्लॉट के 3 से 4 से 6 फुट की दीवार कूद के और दरवाजे की कुंडी खोल दी। शाह ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, तभी उरूज की मन्नत समाज भरी आवाज़ इसके कानों से टकराई। मुअज़्ज़म शाह के पूरे बदन का खून समेटकर चेहरे पर आ गया। वो तकरीबन भागता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुँचा। गार्ड ने बढ़कर गन के पिछले हिस्से से दरवाजे पे 2-3 ज़रब लगाई। खादिम हुसैन नवाज़ और दरवाज़ा तोड़ो, कोई फायर नहीं करेगा, मुझे ये बंदा ज़िंदा चाहिए। मुअज़्ज़म शाह पूरी कुव्वत से धाड़ा। रूशा मुसलसल मज़म्मत से अधमोई होकर मुकम्मल हम्माद के रहमो करम पर आ गई। हम्माद भूखे कुत्ते की तरह इस पे झुका इसे नोच-खरोच कर रहा था, जब इसे दरवाज़े पे पड़ने वाली ज़ोरदार ज़रब और मुअज़्ज़म शाह की गैर बरसाती आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन उसको छोड़कर खड़ा हो गया। किसी की यहाँ आमद इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। निकाह का कोई बंदोबस्त नहीं किया था। वो तो बस अपनी हवस पूरी करके उरूज को वहीं छोड़कर भाग जाने वाला था। मुअज़्ज़म शाह के अल्फाज़ ने इसे चकरा कर रख दिया।
शाह की आवाज़ सुनकर अरूज के जिस्म में जान पड़ गई थी। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढा और अच्छी तरह से अपने गिरफ्त लपेट लिया। चारों गार्ड्स 5 मिनट में लकड़ी का खोखला दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। शाह गन ताने कमरे में दाखिल हुआ। बाकी सब ने भी अपनी गन्स उठा ली। हमाद के हाथ में मौजूद रॉड ज़मीन पर गिर पड़ी। अरूज भाग कर शाह से लिपट गई। इस लम्हे में सब कुछ फरामोश कर गई थी। साबतिन की मोहब्बत भी, शाह के ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी के लिए मजबूर करने के रवैये को भी। इस वक्त अगर कुछ याद था तो बस ये कि शाह इसके लिए फरिश्ता बनकर आया था और अम्माद जैसे शैतान सिर्फ इंसान के हाथों इसकी आबरू पामाल होने से बचा ली। शाह ने इसके सर पर हाथ रखा, फिर इसकी कमर धीरे से थपथपाया, उसे खुद से अलग कर दिया। वो धीरे धीरे हम्माद की तरफ कदम बढ़ा रहा था। हम्माद 2 कदम पीछे हटती दीवार से जा लगा। शाह के चेहरे पे फैला जलाल हम्माद के अंदर कपकपी पैदा कर रहा था। उरूज के सर पे कोई वारिस नहीं, ये सोचकर तूने इसे अगवा किया था ना, अब तेरी ये भूत तुझे जहन्नुम तक पहुंचा देगी। क्योंकि मैं उरूज की तरफ उठने वाली आंख नोच लेना चाहता हूँ, लेकिन तूने तो इसके दामन को दागदार करने की कोशिश जैसा गुनाह कर डाला। तेरी तो लाश को भी इबरत का निशाना बना दूंगा। शाह का दहशतनाक था। हम्माद की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। उरुश को अगवा करने की गलती पर वो पछताया भी नहीं पाया था कि शाह ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ से रसीद किया, फिर बढ़कर हम्माद का गला दबोचकर ज़मीन पे गिरा दिया। हम्माद की आंखें बाहर को उबलने लगी। हम्माद को अंदाज़ा हो गया था इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शाह ने इसका गला छोड़ दिया था। हम्माद संभलने भी ना पाया था। वो ज़ोर से गला पकड़े खांस रहा था। तब शाह ने इस पर लातों और मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उरुश खौफज़दा होकर कमरे से निकल गई। बहुत देर तक उसे बेतरतीब पीटता रहा। जब हाँफने लगा तो इसे छोड़कर जेब से इलेक्ट्रिक वेपन निकाला। हम्माद नीम बेहोशी की हालत में बेसुध पड़ा था। शाह ने इलेक्ट्रिक वेपन इसको टच किया। हम्माद ने एक झटका लिया और बेहोश हो गया। शाह ने खड़े होकर अपने कपड़े दुरुस्त किया, बालों पे हाथ फेरा और खादिम हुसैन को मुखातिब किया। खादिम हुसैन, मैं बीबी को लेकर जा रहा, तुम इसको उठाकर जगह पर लेकर पहुंचो। जब तक मैं वापस ना पहुंचे इसके होश आने में सिर्फ इतना मारना कि ये मरने ना पाए, सब कुछ उगल दे। इसे क्या सज़ा देनी ये मैं खुद तय करूँगा। हाजिर साईं, खादिम हुसैन ने फ़कत इतना कहा और वो जानता कि इसकी सज़ा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, मगर इसकी मौत का तरीका क्या होगा ये सिर्फ शाह जानता था। शाह ने बाहर निकलकर दीवार के साथ खड़ी उरुश की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर इसे साथ लिए गाड़ी के पास पहुंचा। शाह ने फ्रंट डोर खोलकर इसे बिठा दिया। मिर्ज़ा जावल को होश आ चुका था। आज तो इसे आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। फ़ाइज़ा बेगम खुशी से निहाल होकर बार-बार इसके माथे को चूम रही थी। वो दिन-रात हॉस्पिटल में इसके पास ही मौजूद रही थी, एक बार भी घर नहीं गई थी। हालाँकि मीर जाफ़र ने कई बार इन्हें कहा कि वो कुछ देर के लिए घर चली जाएँ, थोड़ा आराम कर लें, मगर फ़ाइज़ा बेगम ने इनकी एक ना सुनी थी। वो अपने इकलौते बेटे से इस हालत में एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी। इनकी कुल कायनात वही तो था जिसको देख-देख कर वो जीती थीं। इसके होने के एहसास से इनकी गर्दन फ़ख्र से तन जाती थी। इनके गुरूर व तकब्बुर में बेपनाह इज़ाफ़ा हो जाता था। मीर जाफ़र तो रंगीन फ़ितरत के मालिक थे और जब शादी के 3 सालों तक अल्लाह ने इन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा तो मीर जाफ़र उन लम्हों में फ़ाइज़ा बेगम का हुस्न जमाल भुला गए, जिसके बाद वो शादी की पहली रात से दीवाने थे और दूसरी शादी के लिए पर तोलने लगे। इनकी सास ने भी बेटी की ख्वाहिश की भरपूर हमायत की। मीर जाफ़र के दिल में भी अपनी किसी क्लास फेलो की दबी मोहब्बत जाग उठी, जो अब तक इनके इश्क में दीवानी थी और राब्ता रखे हुए थे। मीर जाफ़र भी साल में 1-2 चक्कर इसके पास लगा ही लेते थे। अब तो इन्हें शादी करने का सुनहरा मौका मिल गया था। इसी दौरान फ़ाइज़ा बेगम को प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। मीर जाफ़र खुश तो बहुत हुए, मगर दूसरी शादी के अरमानों पर ओस गिर गई। फ़ाइज़ा बेगम के यहाँ बेटे की वलादत ने मीर जाफ़र को ज़ंजीर पहना दी और फिर वो फ़ाइज़ा बेगम के ही होकर रह गए। मिर्ज़ा जावेद जैसे खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को पाकर फ़ाइज़ा के पैर ज़मीन पर ना पड़ते थे। पिछले दिनों मीर की जो हालत थी, इसने फ़ाइज़ा बेगम का सारा गुरूर और तन-तना मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। इन्हें अपनी दुनिया लुटती हुई महसूस हो रही थी, मगर अब वो ख़ासी मुतमईन हो गई थी। मी मैं नमाज़ अदा कर आती हूँ, तुम आराम करो, किसी भी फ़िज़ूल सोच में अपने ज़हन को मत उलझाना, ये तुम्हारी सेहत के लिए फ़िलहाल मुनासिब नहीं। फ़ाइज़ा बेगम ने इसे समझाते हुए उसके सर पे हाथ फेरा। वो जानती थी खुद पर हुए हमले और उसमें ज़ख्मी हो जाने पर अपनी शिकस्त महसूस करके वो किस तरह खुद को काबू किए हुए थे। वो उसकी माँ थी और वो बचपन से बाप के साथ-साथ माँ के दिल की भी बहुत नज़दीक था। आने वाले कल से भी वो बेहद खौफ़ज़दा थी। इन्हें इल्म था कि जब तक मीर जावल इस बात का बदला नहीं ले सकेगा, सुकून से नहीं बैठेगा और ये बात इन्हें मुस्तरब किए हुए थी। मीर ने सर के इशारे से इन्हें मुतमईन कर दिया, फिर बोला, साजिद को मेरे पास भेज दें। इसने अपने मुलाज़िम का नाम लिया। फ़ाइज़ा बेगम ने सहरीला नमाज़ अदा करने की नीयत से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गईं। बाहर खड़े हिफ़ाज़त में मामूर अपने मुलाज़िमों को कुछ हिदायत दी और साजिद को मीर का पैगाम देकर हॉस्पिटल की
सस्से की तरह चल पड़ी जो नमाज अदा करने के लिए मखसूस थी। हुक्म साइं साजिद अंदर दाखिल हुआ, मोहब्बाना हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ज़रताश कैसी है? मेरे बारे में तो खबर तो मिल गई होगी इसे। मीर ने सबसे पहले इसके बारे में सवाल। जी साईं, वो इस दिन वो स्कूल से साईं मासूम शाह के मज़ार गई थी। इसके बाद से अब तक घर से नहीं निकली। मैंने पता करवाया था अपनी घरवाली से, वो बहुत बीमार है। इनकी माँ और बड़े पापा बड़े परेशान हैं जी। साजिद की फराहम करदा इत्तला पर मिर्ज़ा सजावल की आँखें मुस्कुराई, मगर यकदम इसने अपने लतीफ़ जज़्बात की लहर को आँखों से निकल कर चेहरे तक आने पर पहरा लगा दिया और बेतासुर लहजे में बोला, फैज़ अली भी ज़ख्मी है या? मीर ने अपने ख़ास मुलाज़िम की बाबत दरियाफ़्त किया, कसदन जमला अधूरा छोड़ दिया। हमले की रात वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। साईं, वो 2 दिन बाद चल बसा था। साजिद ने सर झुकाकर जवाब दिया। मिर्ज़ा जावल ने लब भींच कर निगाहें छत पर गाड़ दी। फैज़ अली बचपन से इसके साथ था। इसकी वफ़ादारी की कोई मिसाल नहीं मिलती थी। एक गहरी साँस भरकर इसने अपने अंदर उठने वाले गुस्से के उबाल को अंदर ही दबाने की कोशिश की। आज से मौज़म शाह की हर हरकत पे कड़ी नज़र रखो। इस बंदे को ये काम सौंप दो जिस पर तुम्हें मुकम्मल एतमाद हो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, पल-पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। याद रहे, एक लम्हे की भी गफ़लत की सज़ा मौत होगी। इसने दहशतनाक लहजे में तंबिया किया। जी बेहतर चाहे कोई और हुक्म। वो मीर की आंखों में तरती वहशत देख रहा था। साजिद का दिल घबराने लगा। मीर सजावल ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। इसके जाते ही सबने बाजू आंखों पे रख लिया। इस लम्हे वो शिद्दत से जरदाश्त को मिस कर रहा था, मगर लाख चाहने के बावजूद भी इससे मुलाकात मुमकिन नहीं थी। जब तक मुकम्मल सेहतयाब होकर वो अपने पैरों पे चलकर इस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इसे जरदाश्त के दीदार से महरूम रहना था, और ये बात इसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। समीना बेगम जाए नमाज से बैठी मुसलसल रो रही थी और दुआ मांग रही थी। अयान इनकी गोद में सर रख कर सो चुका था। मौज़म शाह को निकले हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर अब तक न उरूज आई थी, न इसकी कोई खैर खबर मिली। इनका दिल अंदोशों से बैठे जा रहा था। जब दरवाजे पे जोरदार दस्तक हुई, वो गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंची थी और बेताबी से दरवाज़ा खोला तो सामने उर्श को सा मौज़म शाह के साथ खड़ा पाया। उर्श ने पकड़ माँ से लिपट गई। उर्श के चेहरे पर निशानात देखकर समीना बेगम के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसकी हालत अबतर हो रही थी, वो हिचकियों से रोने लगी। समीना ने इसे खुद से लिपटा लिया, वो खुद भी रो रही थी। आज का दिन उन्होंने किस अज़ियत में गुज़ारा ये वही जानती थी। मुअज़्ज़म शाह भी अंदर चला आया। इसने पलट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पुष्प पर हाथ बांधकर बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा था। इसने बैठने की भी ज़हमत नहीं की थी। इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि इस वक्त किस मूड में है। दोनों माँ बेटी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खामोशी खड़ी थी। फिर शाह ने खुद ही ये खामोशी तोड़ी और बराह रास्त उर्श को मुखातिब करके पूछा, हम्माद कौन है? वो तुम्हें कैसे जानता है? यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची कि वो तुम्हें उठाकर ले गया? इसका लहज़ा धीमा मगर इसमें चट्टानों जैसी सख्ती थी। समीना को इसकी बात पे करंट लगा था। उन्होंने पहले शाह को और फिर उरूज को बेयकीनी से देखा, मगर उरूज की हालत शाह की कई बात पर सच साबित कर रही थी। और उसने झिझकते हुए गरीबा के घर अम्मा से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर रिश्ता भेजने से इनकार तक की पूरी कहानी धीमी आवाज़ में इसके गोश गुजार दी। समीना ने अपने साथ थाम लिया। हूँ शाह ने हंगार भरा, खाला जान, मैंने कहा था ना आपसे, अब उरुश घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। फिर किसकी इजाज़त से घर से निकली थी? क्या सोचकर आप दोनों ने अपनी मनमानी की थी? वो मिल रहा था। समीना बेगम के पास इसकी बात का जो कोई जवाब नहीं था। वो नादम से नजरें झुका गई। आप लोगों पर मेरी बात का असर नहीं हुआ। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपकी इस बेटी ने। मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी मेरे मुलाज़िमों के सामने। मौज़म शाह शिराज़ी के होने वाली बीवी को किसने अगवा किया? पूरा दिन इसकी कैद में गुज़ार कर आई है। मेरा सर शर्म से झुका दिया। इसे दिल करता है गोली मार दूँ आपकी लाडली को, या इसकी टाँगें तोड़कर हमेशा के लिए घर बिठा दूँ। कर वो गुस्से से ये मिली-जुली कैफ़ियत में गिरा, बुरी तरह तिलमिला रहा था। समीना बेगम ने दहल कर इसकी तरफ देखा। अब मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मज़ीद 1 मिनट भी अब मोहलत नहीं दूँगा। इसी वक़्त आप लोग मेरे साथ चलेंगे। मेरी दी हुई ढील का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया आप दोनों ने। आज ही मेरा और उरुश का निकाह होगा। शाह ने पुष्प पर हाथ बांधे नफ़ी में सर हिलाते एक लम्हे में अपना फैसला सुना दिया। उसके सीने से एक हुक सी उठी थी। इसके दिल की सरजमीं पर पहला कदम रखने वाला मीर सरदीन था। उसने इसकी हमराही के ख्वाब भी सजा लिए थे, मगर इसके ख्वाब इतनी जल्दी चकनाचूर हो जाएंगे वो ये नहीं जानती थी। समीना बेगम शाह के मुंह से निकले अल्फाजों पे एक लम्हे के लिए ठटकी ज़रूर, मगर इन्हें शाह के फैसले में कोई एतराज़ नहीं था। उरुश के साथ आज जो कुछ भी हुआ था, वो सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह उरुश और अयान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाता। वैसे भी इनमें शाह के फैसले से इख्तिलाफ़ की ज़रूरत भी नहीं थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि बरसों पहले गुज़री कहानी फिर दोहराई जाए। एक बार फिर इन सब पे कोई क़यामत टूट पड़े, जिससे इन 3 ख़ानदान तिनकों की तरह बिखर गए थे, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अगले 1 घंटे में वो तीनों अपने ज़रूरी सामान के साथ मुअज़्ज़म शाह की गाड़ी में सवार इसके नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे थे, जो शाह ने उरूज के लिए ख़रीदा था। समीना बेगम, उरूज और अयान तीनों बैक सीट पर बैठे हुए थे। शाह ने बैक मिरर से एक खफ़ी भरी नज़र उरूज पर डाली। इसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान देखा शाह को नए सिरे से गुस्सा चढ़ने लगा। अब अम्मा का वो क्या हशर
करने वाला था ये तो वही जानता था। ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो घंटों गुजर चुके थे, पूरा स्टाफ जा चुका था, मगर अब तक एक ही पोजीशन में बैठे न जाने किस उधेड़पन में मसरूफ था। तभी इसका मोबाइल बज उठा। इसने टेबल पर पड़े मोबाइल पर नजर डाली, रानिया का नंबर देखकर कॉल अटेंड की। हेलो भाई, आप अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? हम सब डिनर पर आपका वेट कर रहे हैं। रानिया बेटा आप लोग डिनर करो, मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, इसने आहिस्तेगी से जवाब दिया। भाई एनी प्रॉब्लम? इसकी आवाज़ का बोझलपन महसूस करके रानिया ने इस्तफार किया। एवरीथिंग इज ऑल राइट, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ देर तक फ्री होकर घर पहुँचता हूँ। उसने रानिया को टाल दिया। लेकिन डैडी कितनी बार आपका पूछ चुके हैं, रानिया ने परेशानी से कहा। तो मैंने खाना खिलाकर मेडिसिन दो, मैं घर पहुँचकर इनसे मिल लूँगा। मिस अब्दीन ने कहते हैं साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे रूज के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, वो जो कुछ भी बोल रही थी यकीनन झूठ नहीं बोल रही होगी। मुझे इस बात को समझना चाहिए था। मौसम शाह जैसे इंसान जो हर किसी पर अपनी दोस्त जमाना जानता हो, हर बात में अपनी मर्जी करने का आदी हो, इसके लिए उस जैसी दब्बू लड़की को अपने इशारों पे चलाना कौन सा मुश्किल काम है। इसने रुश को भी मजबूर किया होगा। मैं क्यों उससे बदगुमान हो गया, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मेरी सोच इतनी सीधी है, नहीं मुझे इससे फ़ौरन कांटेक्ट करना चाहिए। मी सब दिन दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए सोच रहा था। मोबाइल उठाकर इसने रुश को कॉल मिलाई। 2-3 बार ट्राई करने पर भी रुश का नंबर ऑफ जा रहा था। इसका नंबर ऑफ क्यों है? सोई तो नहीं होगी। कुछ सोचकर अपनी जैकेट मोबाइल और केस उठाया, ऑफिस से बाहर निकल आया। वो बेमकसद सड़कें नापता रहा, फिर कुछ देर विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए। सोचने के बाद उसकी गाड़ी का रुख उरुश के घर की जानिब था। तकरीबन 20 मिनट बाद रेस ड्राइविंग करते हुए उरुश की गली में पहुंच चुका था। गाड़ी से उतरकर वो उरुश के घर की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। इसे मुंह चढ़ा रहा था। मिस अब्दुल ने ताला हाथ में पकड़े इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ फासले पे एक खातून को गेट से झांकता देखकर इनकी तरफ चलाया, जो इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर दरवाजे तक आई थी। आंटी क्या आपको मालूम है ये लोग कहाँ गए हुए हैं और कब तक वापस आ जाएंगे? बेटा इनके घर पर तो 2-3 दिन से ताला लगा हुआ है, वैसे तो ये लोग कभी कहीं गए नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। खातून ने तफसीली जवाब दिया। मिस्र दिन सर इलाका पलट गया। इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इस बेबसी में खुद को कोस रहा था कि इसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। रूज तुम कहाँ चली गई यार, अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। इसने गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारा और फिर से रूज का नंबर ट्राई कर रहा था, जो मुसलसल ऑफ जा रहा था। इन लोगों को मुअज़्ज़िम शाह के घर में 1 दिन और 1 रात गुज़र चुकी थी। फिर घर क्या था जैसे महल था। इसकी शान और शौकत हवेली से कुछ कम न थी। जदीद और कीमती फर्नीचर से आरास्ता, बेहतरीन इंटीरियर डेकोरेटिंग का शाहकार। वो तीनों तो दंग रह गए थे। शाह ने लोगों को मुलाज़मा के साथ सीधा बेडरूम में पहुँचा दिया। खुद बाहर से ही जो गया था अब तक वापस नहीं आया था। पूरी रात उर्श की आँखों से नींद दूर रही थी। जो बेहाल होकर दोपहर को सोई अब उठी थी। अपने सामने लगी शाह की तस्वीर को घूरते हुए इसके ज़हन में कल गुज़रने वाला वाक़या पूरी जज़ाइयत से ताज़ा हो गया था। वो चुरचुरी लेकर उठ बैठी। कमरा बेहद कशादा और फुल फर्निश्ड था। एक दीवार पर शाह की बड़ी-सी तस्वीर लगी थी। छोटा-सा रूम फ्रिज भी मौजूद था। समीना बेगम सोफ़े पर अजनबी से अंदाज़ में बैठी किस सोच में गुम थी। तभी उर्श ने इन्हें अपनी जानिब देखकर मुतवज्जा किया। अम्मी मुझे मुअज़्ज़िम शाह से शादी नहीं करनी। आप किसी भी तरह इन्हें रोक लें। मैं इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो आजिज़ी से बोली। उर्श क्या चाहती हो तुम? बोलो। मौसम से निकाह नहीं करना तो किससे करना है? समीना तुर्की बेतुर्की बोली। उर्श की नज़रों में सितमगर का चेहरा घूम गया, जिसने एक पल भी नहीं लगाया था बदगुमान होने में। वो चाहकर भी अब मीर सब्दीन का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोश नज़रों से माँ को तकती रही। इतनी रुसवाई हो चुकी है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा कि मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकती। मौसम जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है। कल जो कुछ भी हुआ इसने मुझे सर से पाँव तक हिला कर रख दिया। अगर मौसम वक्त पर ना पहुँचता तो क़यामत टूट पड़नी थी। शुक्र करो जो उसने तुम्हें बचा लिया और सबके बावजूद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। समीना बेगम ने इसे अच्छी तरह लड़ाड़ा। उरुश लाजवाब सी होकर रह गई। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, दोनों ने बेख्तियार दरवाजे की जानिब देखा, जबकि जवाब उरुश ने दिया था। सर का हुक्म है आप लोग डाइनिंग रूम में जाकर खाना खा लें, वो किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं, बाहर ही लंच कर लेंगे। मुलाज़िम ने मुअद्दबाना शाह का पैगाम इन तक पहुँचाया। ठीक है तुम जाओ, हम कुछ देर तक आते हैं, समीना ने जवाब दिया। मुलाज़िमा सर झुकाए वापस पलट गई। उरुश तुम फ्रेश हो जाओ, नीचे जाकर अयान के साथ डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है। वो थके थके अंदाज में बोली। उरुश खामोशी से उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। समीना बेगम ने सोफ़े की पूंछ पर सर रख आंखें मूंद ली। इनके जहन में माजी की दरीचों के दर खुलने होने लगे। माजी
20 बरस पहले शिराज़ी, मीर और ग़ज़नी ये तीनों ख़ानदान एक ही गाँव में सनपुरा में एक साथ रहते थे। तीनों ख़ानदान में मिसाली दोस्ती थी। ख़वातीन भी एक-दूसरे के घर बिला झिझक जाया करती थीं। ग़ज़नी ख़ानदान में बस 2 भाई थे। बड़े भाई मसरूर ग़ज़नी और इनकी बीवी समीना बेगम। वो दोनों शादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थे। छोटा भाई तैमूर अली ग़ज़नी जो के लंदन में मीर परवेज़ का ही हमजमात था। मसरूर ग़ज़नी और समीना के लिए वही इनकी कुल कायनात था। असद शाह शिराज़ी भी इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर-ए-तालीम था, मगर इन दोनों से 2 साल सीनियर होने की वजह से तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट चुका था। अब ज़िम्मेदारी और बिज़नेस दोनों सँभाल रहा था। हैदर अली शाह और सफदर अली शाह दोनों ही इसकी काबिलियत और ज़हानत पे मुकम्मल एतमाद करते थे। तीनों ख़ानदान दौलत और वहशमत में एक-दूसरे से कम नहीं थे। तकरीबन सभी एक से एक बढ़कर एक थे। लेकिन मीर ज़फ़र अली जो कि गाँव में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और मुअत्तर थे, इसलिए इनका रुतबा बड़ा माना जाता था। पूरा गाँव और बाकी दोनों ख़ानदान भी इनकी राय और फ़ैसले का एहतराम करते थे। गाँव और ख़ानदान के किसी भी छोटे-बड़े मसले में इनका फ़ैसला हतमी माना जाता था। मीर ज़फ़र अली के 3 बेटे मीर गंज़फ़र और मीर जाफ़र और मीर परवेज़ थे। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे। मीर गंज़फ़र और मेहरबानों की 3 औलादें थीं, मीर सफदीन अली, मीर हनैन अली और रानिया। मीर जाफ़र और फ़ाइज़ा को अल्लाह ने बड़ी मन्नत मुरादों के बाद अल्लाह की नेमत से नवाज़ा था। मीर सजावल इनका इकलौता बेटा था, जबकि घर का सबसे छोटा बेटा मीर परवेज़ था, जिसको उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए लंदन भिजवाया था। सुंदस इनकी इकलौती बेटी थी, जो कि घर भर की लाडली थी। सुंदर थी, इतनी प्यारी, सीधी-सादी और मासूम कि हर एक की ज़बान पर इसका नाम रहता था, सिवाय फ़ायज़ा बेगम के। मीर जाफ़र की बीवी जो कि सुंदन की छोटी भाभी थी। बज़ाहिर तो फ़ायज़ा बेगम का रवैया भी इसके साथ बाकी सब लोगों की तरह शफ़क़त और मोहब्बत लिए होता, मगर अंदरूनी तौर पर वो इससे बेहद हसद और जलन रखे हुए थी। फ़ायज़ा बेगम अपने किसी और की अहमियत या बरतरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, और यही मीर हवेली वालों ने सुंदर को सर आँखों पर बिठाया हुआ था। ये बात इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सुंदर से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने मीर जाफ़र से अपने औपाश एयाश भाई के रिश्ते की बात चलाई, तो मीर जाफ़र समेत पूरा घर इन पर सख्त खफ़ा हुआ। मीर जाफ़र ने तो बंद कमरे में इनकी अच्छी खासी क्लास ली थी। फ़ायज़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या सोच कर तुमने मेरे हीरे जैसी बहन के लिए अपने आवारा भाई के रिश्ते की बात की थी, वो भी बराह रास्त बाबा साईं से? मीर जाफ़र नहायत गुस्से में इधर से उधर टहल रहे थे। जैसे ही फ़ायज़ा ने कमरे में कदम रखा, मीर जाफ़र ने इसे आड़ो हाथ लिया। मीर साईं, आपको को मुझे जो कुछ कहना है कह लें, मगर मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने लाडले भाई के लिए आवारा का लक़ब सुनकर वो भड़क उठी थी। हूँ, आवारा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? आज तक इसने कौन-सा ऐब छोड़ा है? मीर जाफ़र ने नखुन से सर झटका। ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया मैंने? इस घर में तो किसी से भलाई करना भी गुनाह है। एक तो मैं आपकी बहन के लिए अच्छा सोच रही हूँ, राज करेगी वो मेरे भाई के साथ। मेरी माँ की बच्ची है, अपनों में ही जाएगी तो आप लोगों को भी सुकून रहेगा। फ़ायज़ा ने इन्हें जज़्बाती करने की कोशिश की। सुंदर मिनमा की ही है, मगर इसके बाप और भाई अभी ज़िंदा हैं, इसकी फ़िक्र हम सबको तुमसे ज़्यादा है। तुम अपनी हमदर्दियाँ अपने पास रखो, और आइंदा इस किस्म की फ़ज़ूल बात अपने मुँह से निकालने की ज़रूरत नहीं। मीर जाफ़र ने इसे बुरी तरह झड़क दिया। अपने शौहर की बहन के लिए इस कदर हमायत ने फ़ायज़ा को मज़ीद से अग़वा कर दिया। इस दिन के बाद से तो सुंदर हर पल इनकी नज़रों में खटकने लगी। हैदर शाह शिराज़ी के 2 बेटे थे। सबसे बड़े सफदर शाह जो शादीशुदा, और 2 बेटे मुअज़्ज़म शाह और मखदूम शाह के बाप थे। इनके बाद असद शाह शिराज़ी और सबसे छोटी ज़ैनब थी। असद शाह में हैदर शाह शिराज़ी और सफदर शाह की जान थी। वो दोनों उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात पे हिमायत करना अपना फ़र्ज़ समझते थे, और यही वजह थी कि असद शाह हद से ज़्यादा खुद और ज़िद्दी था। अपने मिज़ाज के ख़िलाफ़ एक बात भी सुनना पसंद नहीं करता था। हवेली के मकीनों से लेकर पूरे सनपुरा की आवाम पर इसकी हुक्मरानी थी। बीबी जान जल्दी करें ना प्लीज़, देखिए शाम होने लगी है, हम इतनी देर से जाएँगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। सुंदर से मुलाकात का कितने दिन हो गए थे इससे मिले हुए, मुझे इससे ढेर सारी बातें करनी है। ज़ैनब ने पूरी सुंदर से तैयार होकर बीजान के सर पे खड़ी मुसलसल बोल रही थी। ज़ैनब बहुत बोलती है, तो मैंने कहा था ना, कहा है ना, सच आशा आ जाए हम इसके साथ जाएँगे। इसे बिल्कुल नहीं पसंद घर की औरतों का मुलाज़मों के साथ गाड़ी में बैठना। भाई का भी एहसास नहीं तुम्हें? बीजान इससे झिड़का तो मुँह सोर कर रह गई। मीर ज़फ़र की तबीयत पिछले दिनों ज़रा-सी क्या बिगड़ी, उन्होंने घबराकर परवेज़ को लंदन से बुलवा लिया। कल रात की फ़्लाइट से वो इमरजेंसी में आया था, वो लोग इससे मिलने ही जा रही थी। ज़ैनब ये भी जानती थी घर में इसके और मीर परवेज़ के रिश्ते की बात चल रही है। मीर परवेज़ लंदन से जाने से पहले अपने और इसके दिल को मोहब्बत के बंधन में बाँध गया था। आँखों ही आँखों में पपकने वाली मोहब्बत अब मज़बूत रिश्ते में बंधने जा रही थी।
मीर परवेज़ की खामोश मगर वाज़ेह पैगाम को ज़ैनब ने पूरे दिल से कबूल किया था और बड़ी बेसब्री से इसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। मगर आज इसकी अचानक वापसी ने इसके दिल में हलचल मचा दी। वो जो साल भर से खुद को सँभाले दिल पर पहरे लगाए बैठी थी, आज वो बेकाबू हुआ जा रहा था। साल भर से जिस बेताबी से इसने मीर परवेज़ की वापसी का इंतज़ार किया था, कल रात इसकी अचानक वापसी की इत्तला ने इस बेताबी को सवा कर दिया था। सुंदन ने इसे रात ही मीरा व परवेज़ की आमद की खबर सुना दी थी और वो जब से बड़ी हवेली पहुँचने के लिए बेकरार थी। बीबी जान, अगर अदा की वापसी रात तक मुमकिन ना हुई तो क्या हम आज वहाँ नहीं जाएँगे? ज़ैनब के दिल में इस अंदेशे ने सर उठाया तो उसने झट माँ से सवाल किया, ज़ैनब आज जाना इतना ज़रूरी भी नहीं। असद शाह भी ज़मीनों से थका हुआ आएगा, फिर तुम्हें लेकर जाएगा तो मीर परवेज़ की खातिर इसे रात के खाने तक वहीं ठहरना होगा। एक काम करें, आप लोग कल सुबह आराम से चली जाइएगा। रुखसाना ने मुस्कुराती आँखों से ज़ैनब को देखते हुए मशवरा दिया। वो इसकी दिली कैफ़ियत से वाकिफ़ थी, इसलिए इसे छेड़ रही थी। भाभी, अगर हम कल जाएँगे तो बड़ी हवेली वालों को बुरा लगेगा ना? ज़ैनब ने रुखसाना को आँखें दिखाई। इसका इशारा मीर परवेज़ की नाराज़गी की तरफ था। रुखसाना ने समझ कर बेसाख्ता उमड़ डालने वाली इस हँसी को बीजान की मौजूदगी के ख़्याल से होठों में दबा लिया। ख़ैर जाना तो आज ही है। बीबी जान ने मुअज़्ज़म शाह को रुखसाना की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कहा, फिर कुछ सोचकर बोलीं, ज़ैनब तुम मर्दान खाने में किसी को भिजवा कर पता करो, अगर सद्दा शाह मौजूद है तो हम इसके साथ चले जाएँगे। उन्होंने ज़ैनब को मशवरा दिया तो फ़ौरन से बेशतर भागी चली गई। बीबी जान और रुखसाना इसकी जल्दबाज़ी पर मुस्कुरा कर रह गईं। माज़ी सफदर शाह ने गाड़ी ज़नान खाने के बिल्कुल पास लेकर जाके रुकी थी। बीबी जान और ज़ैनब उतर कर अंदर चली गई, जबकि सफदर शाह को मीर परवेज़ मर्दाने के बाहर ही खड़ा नज़र आ गया। इसने सफदर शाह के नज़दीक पहुंचकर सलाम किया और दोनों बगल खैर हुआ मर्दाने की तरफ बढ़ गए। ज़ैनब, कितने दिनों बाद आई हो तुम, बड़ी बेवफ़ा हो। इतने दिनों से तुम्हें मेरी याद नहीं आई। अब भाई आए तो कैसी दौड़ी चली आई। सुंदन इसे लेकर अपने कमरे में चली आई और खूब लधाड़ा। ज़ैनब इसकी बात पर किलकिलाकर हंसी। तुम्हारे अंदर वो बात नहीं जो तुम्हारे भाई में, देखो कैसे दौड़ी चली आई। ज़ैनब ने शोखे से कहा तो सुंदस पहले हैरान हुई, फिर शरारत से बोली, अभी तो भाई से तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर भी इतनी बेबाक हो रही हो मिलोगी तो न जाने क्या करोगी। ज़ैनब एकदम झेप गई। मीर परवेज़ से रूबरू बात करने के ख्याल से इसके मन में गुदगुदी हो रही थी। सुंदस, एक बात पूछूं, सच सच बता, जवाब दोगी? तुम्हारे भाई लंदन में किसी गौरी मेम को तो अपना दिल नहीं दे आए? वो सुंदस को छेड़ रही थी, वरना इसे मीर परवेज़ के वादे और उसकी ज़ात पे बुरा भरोसा था। मेरे भाई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि फ़िरंगी लड़कियों से तो दूर भागते हैं। सुंदस ने इस पे तवक्को बुरा मानकर इसका हाथ झटका और खफ़ी से रुख मोड़ गई। फिर यकदम बोली, वैसे मुझे क्या पता, तुम खुद ही पूछ लो। इसकी नज़र अचानक मीर परवेज़ पर पड़ी तो शरारत से कहा। ज़ैनब ने नज़र घुमाई तो मीर परवेज़ दरवाज़े पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऊँचा, पूरा, सेहतमंद, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। लंदन की आबो-हवा इसे खूब रास आई थी। ज़ैनब ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी, फिर इसकी वल्हाना नज़र खुद पर जमी देखकर सुंदस के पीछे ओट में हो गई। ज़ैनब, मैं बीबी जान के पास जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। वो इन दोनों को प्राइवेसी देने के ख़्याल से फ़ौरन ही कमरे से निकल गई। ज़ैनब ने भी इसके कमरे से निकलते पीछे जाने चाहा, मगर दरवाज़े पे खड़े मीर परवेज़ ने पास गुज़रते इसकी कलाई थाम ली। हाँ, अब पूछो क्या पूछना चाह रही थी तुम? मीर परवेज़ इसके चेहरे पे उतरे धनक रंग पुरजोश अंदाज़ में देख रहा था। ये कि लंदन में किसी मैम से दिल तो नहीं लगा लिया? ज़ैनब ने बड़ी अदा से मुँह बनाकर अपनी बात दोहराई और उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। मीर परवेज़ ने इसकी इस अदा को बड़ी दिलचस्पी और कदरे हैरानी से मुलाहिज़ा किया, क्योंकि लंदन लंदन जाने से पहले वो इससे बहुत लिहाज़िया सा अंदाज़ अपनाए रखती थी, बल्कि छुपती फिरती थी। जनाब, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा, इसलिए कोशिश बेकार है। मीर परवेज़ ने अपनी गिरफ़्त मज़बूत की और रही बात गोरी मैम की है, तो अगर तुम्हारी याद के सैर से निकलता तो किसी गोरी मैम से दिल लगाता ना? तुमने तो हमें किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। वो मज़ाक ही मज़ाक में अपने दिल के हाल से इसे आगाह कर रहा था। ज़ैनब ने नज़र उठाकर इसे देखा। ज़ैनब, तुम्हारी बात काबिल गौर है, मैं सोच रहा हूँ इस बार जाऊँगा तो वापस में एक मैम ले ही आऊँगा। वो शरारत से इसकी आँखों में झाँकते हुए बोला। ज़ैनब ने इसे घूर कर देखा। ले आइएगा, किसने रोका? बल्कि अभी भी खाली हाथ क्यों आए हैं? इस बार ही साथ लेकर आना चाहिए था ना। ज़ैनब ने इसका हाथ झड़क दिया और आँखों में आई नमी को छुपाने के लिए रुख मोड़ गई। यार, ये तो खुद ही मज़ाक करती हो, फिर खुद ही बुरा मान गए। इतने दिनों बाद मिले हो, अब इस तरह करोगी? मीर परवेज़ ने इसे कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। वो पलटते ही कमरे से निकल गए। यार सुनो तो सही, तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम गलत क्यों समझ रही हो? मीर परवेज़ ने ऊँची आवाज़ में कहा, फिर एक जानदार कहकमा लगाया। ज़ैनब सन सन अनसुनी करती हुई सीढ़ियाँ फलांग गई।
وہ لوگ ڈنر سے فارغ ہوئے تبھی مردان خانے سے بلاوا آ گیا۔ زینب بی بی چھوٹے سائے کا حکم ہے، آپ لوگ جلدی آ جائیں، وہ گاڑی میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ نے پیغام ان تک پہنچایا۔ بی بی جان فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سندر اب تم حویلی کا چکر لگانا، بس میں ہمیشہ ہی آتی ہوں، تمہیں تو کبھی زحمت ہی نہیں ہوتی۔ زینب نے سندس کو گلے لگا کر پیار بھرا شکوہ کیا۔ اس لیے تو ہم سب پوچھ رہے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے سوچ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں تاکہ روز روز کے چکروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ سندر شرارت سے گویا ہوئی، بالکل پاگل ہو تم۔ زینب شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کچھ تو خیال کیا کرو، اگر بی جان یا مہربانو بھابھی سن لیتی تو۔ بی بی جان اور مہربانوں کی موجودگی کا احساس سے گھبرا کر اس نے سندس کی کمر پر دھپ لگائی۔ سندر شرارت سے ہنس دی، پھر ان کے ساتھ زنان خانے کے باہر تک انہیں الوداع کرنے چلی آئی۔ صفدر شاہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، اب اسد شاہ خود انہیں لینے آیا تھا۔ اس نے کبھی بھی میر حویلی کے زنان خانے میں قدم نہیں رکھا تھا، وہاں جانے پر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ حویلی کے اصولوں کی پاسداری کرنے والوں میں سے تھا۔ میر پرویز سے بھی مردانے میں ہی ملا تھا اور ڈنر بھی اس نے میر پرویز کے ساتھ ہی کیا تھا۔ سندس زینب کے ساتھ چلتی ہوئی ذرا آگے بڑھ آئی، تبھی اسد شاہ کی نظر اس پہ پڑی۔ جوان ہونے کے بعد اس نے کبھی سندس کو دیکھا نہیں تھا، وہ حویلی بھی آتی بھی تو چادر سے نقاب کیا ہوتا۔ اس نے بی جان کو کہتے سنا تھا کہ سندر جیسا حسن آس پاس کے 10 گاؤں میں بھی کسی کا نہیں ہوگا، مگر وہ اس درجہ حسین ہوگی یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسد شاہ کی نظر سے پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ گہرے نیلے رنگ کے کڑھائی والے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بی جان کا اس کے بارے میں تجزیہ اور اسد شاہ کو 100% درست لگا۔ بی جان اور زینب گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئیں، مگر اس کی موہیت نہیں ٹوٹی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکا۔ اسد شاہ کے پہلی بار اس طرح دیکھنے کو سندس نے بھی حیرانی سے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے تو اسد شاہ نے کبھی اس پہ ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی، یا شاید اس کی عادت ہی نہیں تھی، مگر یہ آج جس طرح کیوں دیکھ رہا ہے وہ سوچتے ہوئے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ بی جان اور زینب کو گھر ڈراپ کر کے وہ ڈیرے پر آ گیا تھا، اپنی گن ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس پر انگلیاں پھیرتے ہوئے مسلسل سندس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے رہے تھے، پورا گاؤں اپنی آدھی سے زیادہ نیند پوری کر چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھی، لندن میں بھی اس کی گرل فرینڈ کی فہرست طویل تھی، مگر سندر اسے ایک نظر بھی ان سب سے مختلف لگی۔ وہ اسد شاہ کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ سب بیوی بنائے جانے کے قابل نہیں تھی اور سندس کو ایک طرح نظر دیکھتے ہوئے اسے ہمسفر بنانے کا خواہشمند ہو گیا تھا۔ سندس سے شادی کا کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی۔ جب زینب کا رشتہ میر پرویز کو دیا جا سکتا ہے تو پھر لوگوں کو سندس کا رشتہ مجھے دینے میں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ویسے بھی جو اسد شاہ کی بیوی بنے گی دنیا اس پہ رقص کرے گی۔ وہ اپنی سوچ پر مطمئن سا ہو کر تغافل سے مسکرایا، پھر کھڑا ہوا، گن آسمان کی طرف تان کر کسی غیر مرئی نقطے پر نشانہ باندھا فائر کر دیا۔ رات کے سناٹے میں دور تک فائر کی آواز گونجی تھی۔ میر ظفر شاہ نے اپنی معمولی سی بیماری کو کچھ زیادہ سیریس لے لیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میر پرویز اور زینب کا نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی اور ولیمہ میر پرویز کی تعلیم مکمل ہونے پہ کر دی جائے گی۔ حیدر شاہ شیرازی کو ان کا پیغام ملا تو انہوں نے بنا کسی پس و پیش کے حامی بھر لی۔ یوں آنن فنن دونوں گھرانوں میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میر پرویز نے تیمور علی غزنی کو کال کر کے معاملے سے آگاہ کیا، وہ بھی اس فیصلے پر بہت خوش ہوا۔ تیمور صرف خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں نکاح میں شرکت کے لیے پاکستان آنا ہوگا۔ میر پرویز نے اصرار کیا، ہاں یار تم جانتے ہو سیمسٹر سر پر ہے، ایک تو تم نے وہاں نکاح کا پروگرام بنا لیا، اب مجھے بھی بلا رہے ہو۔ تیمور نے میر پرویز کو چھیڑا۔ میر پرویز نے ساختہ جب ہنس دیا، بس یار پاپا سائیں کو دعائیں دے رہا ہوں، تم تو میری حالت سے باخبر ہو۔ میر پرویز مزے سے بولا، ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تم نے ہی وہ چکر چلایا ہوگا، وہاں جا کر جو بیٹھ گئے ہو، زینب کو دیکھا تمہاری واپسی آنے کی نیت ہی نہیں ہو رہی ہوگی۔ تیمور غزنی دو بدو بول اٹھا، سچا پیار کرنے والوں کے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں تم بھی آزما کر دیکھ لو، بڑا سرور ہے اس میں۔ میر پرویز نے لگے ہاتھوں اسے بھی اکسایا۔ تیمور کی آنکھوں میں سندس کا چہرہ ابھر آیا، جب آزماؤں گا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا، فی الحال میں یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، جب تک تم نہیں پہنچو گے میں نکاح کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ میر پرویز کی آواز پہ شوخی کا تاثر نمایاں تھا، تیمور کا گہگمہ بے ساختہ تھا۔ اللہ حافظ، اس نے فون بند کر دیا، ریسیور رکھ کر وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو جانا ہی پڑے گا۔ یار تیمور ایک کال ہی کر دیتے، ہم تمہیں لینے ایئرپورٹ پر آ جاتے، اسد شاہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ پرویز کو سرپرائز دینے کا ارادہ تھا، ورنہ جب کال پر میں نے اسے بتایا تھا کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا تو اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا اگر میں نہیں پہنچوں گا تو یہ نکاح کے پیپر سائن نہیں کرے گا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کنوارے کی خواہش پوری کر دی جائے، اور وہ بھی سرپرائز کے ساتھ، اگر انفارم کر دے تو اس کے چہرے پہ خوشی کیسے دیکھ پاتا۔ تیمور نے شائستہ لہجے میں محبت سے تفصیلی جواب دیا۔ میر پرویز نے اس کی محبت و مشہور ہو کر سر کو ذرا خم سا دیا اور سلوٹ کے انداز میں ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔
मुझे कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी सोच रहा हूँ, शहर का एक चक्कर लगा लिया जाए, क्या ख़्याल है? तुम दोनों साथ चलोगे? मीर परवेज़ ने एक साथ इन दोनों को मुख़ातिब किया। वो तीनों तैमूर ग़ज़नी के डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तैमूर कंधे उचकाए, यार मैं नहीं जा सकता। मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, मुझे इनके साथ शिकार पर जाना है। बलूचिस्तान की साइड पे सुबह सुबह रवानगी है। असद शाह शिराज़ी ने संजीदगी से कहते हुए मुआज़त कर ली। वो दोनों बातों में लग गया। असद शाह सिगरेट सुलगा अपनी ही सोचों में गुम हो गया। वो सोच रहा था कि ज़ैनब के निकाह के साथ ही अपने और सुंदस के निकाह के लिए बाबा साईं को राज़ी करे, मगर वो वक़्त बहुत कम रह गया था। मीर ज़फ़र शायद इतनी जल्दी राज़ी ना होते। अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया या इस मामले में को बात के लिए टाल दिया, तो ये इसकी सुक्की इसकी अना को गवारा नहीं थी। वो शदीद कशमकश में मुब्तला था। वो जल्द से जल्द सुंदर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। सुंदस को देखने के बाद से वो इतना बेकरार हो गया था कि किसी काम में भी इसका दिल नहीं लग रहा था। शिकार तो सिर्फ बहाना था, वो तो राय फ़रार ढूँढ रहा था। इधर तैमूर ग़ज़नी ये सोचे बैठा था कि चुपके से समीना भाभी को अपने दिल की बात बता देगा, तो वो खुद ही अदा साई को बता देंगी और वो दोनों मीर ज़फ़र से इसके और सुंदस के रिश्ते की बात कर लेंगी। इस बार वो इस मामले की तरफ से मुतमईन होकर लंदन जाना चाहता था, क्योंकि भाभी को इत्मीनान मिले बगैर जाना रिस्की था। मीर परवेज़ बातों-बातों में इशारतन ज़िक्र कर चुका था कि इसके बाबा से इसकी शादी के बाद जल्द से जल्द सुंदस के फ़र्ज़ से भी सरगोश होना चाहते हैं। ये फ़र्ज़ा वो इसके वलीमे की तकरीब में ही अंजाम देंगे। मीर परवेज़ और उसकी फ़ैमिली की भी दिली ख़्वाहिश यही थी कि तैमूर ग़ज़नी भी ही इनका दामाद बने। अतर शाह की ग़ज़ीली फ़ितरत और सद्गेरी से सभी वाकिफ़ थे। इसकी तमाम तर वजाहत और शानदार पर्सनैलिटी के बावजूद भी वो लोग नाज़ुक और कोमल सी सुंदस के लिए इसे मुनासिब नहीं समझते थे। इसके बानिस्बत तैमूर ग़ज़नी निहायत सुलझा हुआ, समझदार और नरम नौजवान था, इसलिए पूरी फैमिली का झुकाव इसी की जानिब था। पूरी हवेली बरकिन कमकमों से सजी दुल्हन बनी थी। आज मीर परवेज़ की मेहंदी थी। मीर ज़फ़र मेहंदी और निकाह पर भी सारे अरमान निकाल लेना चाहता था, इसलिए हवेली को भी खूब सजवाया था। हर तरफ रंग व नूर का सैलाब उमड़ आया था। सब लोग मेहंदी लेकर शिराज़ी विला जाने के लिए तैयार थे। मसरूर ग़ज़नी और तैमूर ग़ज़नी लड़के वालों की तरफ से शामिल थे, जबकि समीना बहन की नंद की मेहंदी में शिराज़ियों की तरफ से शिरकत करने के लिए सुबह से शिराज़ी विला चली गई थी। तैमूर ग़ज़नी का गुज़र ज़नान खाने की तरफ से होता इसकी नज़र सजी-सवेरी सुंदर से पड़ी, जो मुकम्मल तैयारी के साथ बेहद हसीन लग रही थी। वो महूत रह गया, पूरे 1 साल बाद इसे देख रहा था। इस 1 साल में इसने सुंदर को बहुत मिस किया था, मगर कभी भी इस पे ज़ाहिर होने नहीं दिया। हालाँकि वो अक्सर मीर ज़फ़र अली की खैरियत जानने के लिए हवेली फ़ोन करता रहता था और कई बार ये इत्तेफ़ाक भी हुआ कि सुंदर ने खुद कॉल अटेंड की, मगर इसने कभी भी सुंदर पे अपने जज़्बात अयान नहीं होने दिए थे। मगर आज वो चंद कदम का फ़ासला तय करके सुंदस तक पहुँच गया था। "सुंदस कैसी हैं आप?" तैमूर ने सलाम के बाद इसे मुख़ातिब किया। सुंदस जो किसी काम से वहाँ खड़ी थी, इसकी आवाज़ पे यकदम चौंक गई, फिर सँभल कर इसे सलाम का जवाब दिया। अदा तैमूर, आप कब पाकिस्तान पहुँचे? हमें तो पता ही नहीं था, आप भी शादी में शिरकत करने वाले हैं। इसने खुशी और कतरे हैरानी से इस्तफ़ार किया। जी, चंद रोज़ पहले ही आया हूँ। मीर परवेज़ ने बहुत इसरार किया था, इसलिए आना ही पड़ा, मगर अब सोच रहे हैं यहाँ आने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। तैमूर ने इसके सरापे पर भरपूर नज़र डालते हुए मैंने ख़याज़ी से कहा, इसकी बात का मफ़हूम सुंदस के सर से गुज़र गया था। बहुत अच्छा किया आपने, समीना भाभी भी आपको बहुत याद कर रही थी। वो अक्सर ही आपका ज़िक्र करती रहती हैं। अदा परवेज़ भी आपको बहुत मिस करते हैं और एन्जॉय भी नहीं कर पाते। वो सादगी से बोली। तैमूर ग़ज़नी इसकी सादा लुई पर मुस्कुरा कर रह गया। मीर परवेज़ को छोड़कर तकरीबन पूरा ख़ानदान शिराज़ी विला जाने के लिए गाड़ियों में सवार हो रहा था। चंद लम्हों बाद वो लोग रवाना हो चुके थे। शिराज़ी विला पहुँचने पर इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। ढेरों फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही थी, मगर असद शाह को जिसका इंतज़ार तो अब तक नज़र नहीं आई थी। इतने दिनों से बड़ी बेसब्री से इसने आज तक के का इंतज़ार किया था, क्योंकि इसके अलावा सुंदस के दीदार की और कोई तदबीर इसके पास नहीं थी। हैदर अली शाह ने मीर ज़फ़र को गले लगाया, फिर इनके गले में शॉल पहनाए। अतर शाह ने भी इसी तरह मीर ज़फ़र और मीर ज़फ़र का इस्तकबाल किया। तभी औरतों के झुरमुट में से सुंदस की झलक नज़र आई और वक़्त जैसे थम गया। सुंदर बॉटल ग्रीन कलर के फ्रॉक और तंग पजामे में मलबूस बिना निकाब के डीप रेड लिपस्टिक लगा के क़यामत ढा रही थी। असद शाह बिना पलकें झपकाए इसे बेखुदी के आलम में देखता रह गया। असद शाह यूँ ही खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? सफदर शाह के टोकने पर वो गड़बड़ा गया। सुंदस बाकी सबके साथ हवेली के अंदर जा चुकी थी। ज़र्द जोड़े में मलबूस हाथों में गजरे, कानों गले और माथे पर फूलों के ज़ेवर पहने ज़ैनब नज़र लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। मेहरबानो भाभी ने फ़ौरन इसकी बलाएँ ली, फिर इसके माथे पर प्यार किया, जबकि फ़ाइज़ा नज़रअंदाज करके इधर-उधर देखने लगी। वो भला अपने सिवा किसी की तारीफ़ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ज़ैनब, आज अगर भाई तुम्हें देख रहे तो कल ही रुखसती करवा कर दम लेंगे। सुंदर जो इससे पहलू से चिपकी बैठी ज़ैनब के कान में सरगोशी की।
ज़ैनब के चेहरे पे गाल बिखर गया। उसने सुंदस को कोहनी से टोक दिया। सुंदस कुलकुलाकर हँस पड़ी। मेहंदी की रस्म और खाने से फारिग होने के बाद लड़कियाँ ढोल के लिए लहक-लहक कर गाने गा रही थी। तभी कुछ लड़कियाँ खड़ी होकर डांस भी करने लगी। एक लड़की ने हाथ पकड़कर सुंदस को बिठा लिया। सुंदस पहले तो ज़रा-सा झिझकी, फिर इन सब के साथ शामिल हो गई। इसका नरम गज़ार जिस्म ढोलक की थाप पे लचक रहा था। तैमूर की नज़रें बार-बार भटक कर सुंदस पर जा रही थीं। ऊपर से लॉन का मंज़र बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और सशा अपने कमरे में खड़ा दोनों हाथ खिड़की पे जमाए बड़े दिलचस्पी से ये सुहाना मंज़र देख रहा था। इसे पूरे लॉन में सुंदस के सिवा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसने उँगलियों में दबे सिगरेट को लबों में दबाया और गहरा कश लिया। बीबी जान अपनी जगह से खड़ी हो सुंदस पर नोट वारी लगी। सुंदस ने एकदम झेप कर चेहरा हाथों में छुपा लिया। सशा की इस मासूम से अंदाज पर जी जान से फ़िदा हो गया। सुंदस को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली आई। वो हवेली आती रहती थी इसलिए इसे वॉशरूम की सिमत का पता था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकली और लॉन में जाने वाली राहगीर का रुख किया। तभी किसी ने पीछे से इसका हाथ पकड़ा और एक हाथ इसके मुँह पर रखकर राहगीर के सामने बने कमरे में खींच लिया।